प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर ने जो हमें आशीष किया और आज एक नया दिन और नया सुबह हमें प्रदान किया, उसके लिए धन्यवाद देता हूँ। ईश्वरक धन्यवाद दिছোঁ যে ঈশ্বৰে আমাক আজি নতুন দিন আৰু নতুন জীৱন ঈশ্বৰে আমাক দান কৰিলে, যে আপোনাৰ ঈশ্বৰৰ ওচৰত চাপিব কেনে, ঈশ্বৰৰ পবিত্ৰ নামটো ল'ব কেনে দিছে, তাৰ কাৰণে ঈশ্বৰক কোটি কোটিবাৰ ধন্যবাদ দিছোঁ। আপোনালোককো ধন্যবাদ দিছোঁ যিমান ইয়াত উপস্থিত আছে, লগতে যিমান অনলাইনৰ যোগেদি আছে তেওঁলোককো ধন্যবাদ দিছোঁ। আজি যে তেওঁলোকে আমাৰ মাজত ইয়াতে আছে, যিটো আজি পবিত্ৰ দিন, আজি ছানডে ছাৰ্ভিচত যিটো আমি ঈশ্বৰৰ বাক্য লৈ পেলাই আহিছোঁ, সেইটো বাক্য মই এতিয়া পঢ়ি দিম। গীতমালা 24 অধ্যায় मैं हिंदी दी पढ़ी दी। पृथ्वी और जो कुछ उसमें है यहोवा ही का है, जगत और उसमें निवास करने वाले भी, क्योंकि उसी ने उसकी नींव समुद्र के ऊपर ढीर करके रखी और महानन के ऊपर स्थित किया है। यहोवा के पर्वत पर कौन चढ़ सकता है और उसके पवित्र स्थान में कौन खड़ा हो सकता है। जिसके काम निर्दोष और हृदय शुद्ध है, जिसने अपने मन को वेशवास की ओर नहीं लगाया और ना कपट से शपथ खाई है, वह यहोवा की ओर से आशीष पाएगा और अपने उद्धार करने वाले परमेश्वर की ओर से धार्मिक ठहरेगा। प्रभु यीशु बाइक के ऊपर आशीर्वाद हो। आप प्रार्थना करो। Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, পবিত্ৰ 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 সৰ্বশক্তিমান ঈশ্বৰ যহোৱা, আপোনাক ধন্যবাদ দিছোঁ। আপোনাৰ স্তুতি, আপোনাৰ মহিমা, আপোনাৰ গৌৰৱ আৰু আপোনাৰ প্ৰশংসা হওক। আপোনাৰ পবিত্ৰ নামটো যুগে যুগে থাকক। প্ৰভু, আপুনি আমাক আশীৰ্বাদ অনুগ্ৰহ কৰা কেনে এটা নতুন দিন, নতুন জীৱন দিছে, যে আপোনাৰ ওচৰত চাপিব কেনে, আজি পবিত্ৰ দিনটো পালন কৰিব কেনে। অ' পবিত্ৰ ঈশ্বৰ, আজি সাৰা সংসাৰৰ পিতা আপোনাৰ পবিত্ৰ নামটো লগাইছে। হয় পিতা পৰমেশ্বৰ, কিছুমানে চাৰ্চৰ, কিছুমানে ঘৰত ফেলোশ্বিপ গ্ৰুপ হৈ পেলাই তেওঁলোকে আপোনাৰ পবিত্ৰ নামটো লৈছে। কিয়নো আপুনি এইটো নামটো লৈ আপোনাৰ ধন্যবাদ দি আপুনি যোগ্য হয়, আপুনি মালিক হয়। প্ৰভু, আমাক প্ৰত্যেক সৃষ্টিকৰ্তা মান মৰ্যাদাটো আপোনাক দিছোঁ, আৰু প্ৰত্যেক প্ৰাণীয়ে আপোনাক আঁঠু কাঢ়ি পেলাই আপোনাক প্ৰণিপাত কৰক। সেই পবিত্ৰ ঈশ্বৰ, মই আপোনাৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ, আজি আপুনি আমাক আশীৰ্বাদ কৰা কেনে। লগতে প্ৰভু পৰমেশ্বৰ, আজি ইয়াতে যিমান চবে আজি অনলাইনৰ যোগেদি আজি ছাৰ্ভিচত এটেণ্ড কৰিছে, তেওঁলোকৰ ওপৰত আপুনি দৃষ্টি কৰিব, আৰু ইয়াত থকা প্ৰত্যেকৰ ওপৰত আপুনি দৃষ্টি দিব। লগতে যি সন্তানে আজি আপোনাৰ জীৱন জল বাক্য লৈ পেলাই আহিছে, তেওঁৰ ওপৰত আশীৰ্বাদ কৰি দিব। সেই পবিত্ৰ ঈশ্বৰ, এনেকুৱা বাক্য দান কৰা প্ৰত্যেক মনৰ হৃদয়ত লাগিব কেনে, আৰু কঠোৰ মন চব ভাঙিব কেনে, আৰু তেওঁৰ সত্যতা দি আপোনাৰ বচনটো পিতা যেতিয়া ক'ব, আৰু প্ৰত্যেকৰ জীৱনত আপুনি কাম কৰিব। অ' পবিত্ৰ ঈশ্বৰ, সেই সন্তানটো খালী পাত্ৰ, কিন্তু আশীৰ্বাদ কৰোঁতা আপুনি হয় পিতা। আহক প্ৰভু, ইয়াতে প্ৰত্যেকজনকে আপুনি আশীৰ্বাদ কৰিব। প্ৰভু, এই ছাৰ্ভিচটো প্ৰথমৰ পৰা লৈ পেলাই লাষ্টলৈকে মই আপোনাৰ হাতত সুধাই দিছোঁ। প্ৰাৰ্থনা নাজৰা প্ৰভু যীশুৰ নামত খুজিছোঁ, আমেন। প্ৰেজ দ্য লৰ্ড, প্ৰেজ দ্য লৰ্ড, প্ৰেজ দ্য লৰ্ড। মই এতিয়া পাষ্টৰক সময় দিছোঁ, আপুনি আহক, সময়টো আপুনি লওক। ধন্যবাদ দিছোঁ। প্ৰেজ দ্য লৰ্ড। ঈশ্বৰক ধন্যবাদ দিছোঁ, আজি সুন্দৰ দিন তেওঁ আমাক দিয়াৰ কাৰণে, আৰু পবিত্ৰ বিশ্ৰাম বাৰ তেওঁ আজি আমাক দিছে। আমি আনন্দিত যে আজি এই দিন ঈশ্বৰে আমাক দিলে তেওঁৰ স্তুতি মহিমা প্ৰশংসা কৰিবৰ কাৰণে। আজি এই দিন তেওঁ আমাক দিছে তেওঁৰ নামত গীত গাবৰ কাৰণে, আৰু সেয়েহে আমি যিমান বিশ্বাসীসকল আছোঁ প্ৰত্যেকেই আমি ঈশ্বৰৰ নামত ধন্যবাদ আৰু মহিমা দিব লাগে। আমি ঈশ্বৰৰ প্ৰশংসা কৰিবৰ কাৰণে যেতিয়া যাওঁ, বাইবেলে কৈছে যে তেওঁক
প্ৰশংসা স্তুতি দিয়াসকল বা তেওঁৰ ভজনা কৰাসকলে সত্যৰে আৰু আত্মাৰে তেওঁৰ ভজনা আৰু তেওঁৰ স্তুতি কৰিব লাগে। সেয়ে আমি পবিত্ৰ আত্মাৰে সদায় পৰিপূৰ্ণ হৈ ঈশ্বৰৰ স্তুতি মহিমা আৰু প্ৰশংসা কৰিব লাগে। যদি আমি ঈশ্বৰৰ স্তুতি আৰু প্ৰশংসা কৰিবৰ কাৰণে আমি পবিত্ৰ আত্মাৰে পৰিপূৰ্ণ নহওঁ, তেনেহ'লে আমাৰ সেই ধন্যবাদ স্তুতি আমি ঈশ্বৰক দিয়াটো গ্ৰহণযোগ্য নহয়। আত্মাৰে আৰু সত্যৰে আমি ঈশ্বৰক ধন্যবাদ দিব লাগে। हर सुबह हर शाम गाएंगे यीशु नाम, हर सुबह हर शाम गाएंगे यीशु नाम, हर सुबह हर शाम गाएंगे यीशु नाम, हर सुबह हर शाम गाएंगे यीशु नाम। तुझे छोड़ कर जाऊं कहा तू है तो मैं हूँ यहाँ, तुझे छोड़ कर जाऊं कहा तू है तो मैं हूँ यहाँ। अब ये लम्हा जरा थम जाए यहाँ तेरे मेरे दरमिया, अब ये लम्हा जरा थम जाए यहाँ तेरे मेरे दरमिया। हर सुबह हर शाम गाएंगे यीशु नाम, हर सुबह हर शाम गाएंगे यीशु नाम। हालेलुया। पवित्र ईश्वर ধন্যবাদ 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 যাচিছোঁ পিতা, সুন্দৰ অনুগ্ৰহ আৰু আশীৰ্বাদ কৰাৰ কাৰণে। তুমি আমাক প্ৰভু নতুন দিন দিছা, নতুন জীৱন দিছা, আৰু এই সময়ত পবিত্ৰ ঈশ্বৰ তোমাৰ উপস্থিতিৰে আমাক পৰিপূৰ্ণ হ'ব দিছা। ধন্যবাদ দিওঁ প্ৰভু। এই সময়ত আমি কামনা কৰিছোঁ, আশা কৰিছোঁ তোমাৰ উপস্থিতি। পবিত্ৰ আত্মা আমি কামনা কৰিছোঁ তোমাৰ উপস্থিতি আমাৰ জীৱনত আৰু অনুগ্ৰহ কৰা। আজি এই পবিত্ৰ বিশ্ৰামবাৰে যি শাস্ত্ৰ আৰু লগতে যি প্ৰভু আলোচনা কৰিবৰ কাৰণে আমি গৈ আছোঁ, সকলোবিলাকত প্ৰভু তুমি অনুগ্ৰহ কৰা। ইয়াত মই কওঁতা নহয় প্ৰভু, মোৰ যোগেদি তুমি কথা কোৱা, আৰু শুনোতাসকলক প্ৰভু কাণ আৰু তেওঁলোকৰ চকু আৰু হৃদয় মুকলি কৰিবা, যেন তেওঁলোকে তোমাৰ বাক্য শুনিব আৰু তেওঁলোকে শুনি যেন তাক পালন কৰিব পাৰিব। তুমি তেনে অনুগ্ৰহ দান কৰিবা প্ৰভু। এই শিক্ষা দিওঁতে প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে তোমাৰ উপস্থিতি কামনা কৰি প্ৰাৰ্থনা যীশুৰ নামত জনালোঁ, আমেন। প্ৰেইজ দ্য লৰ্ড, हालेलुया। तो आज जो वचन मैंने यहाँ लिया है, इस वचन मैंने प्रभु से मांगा था कि प्रभु मैं जो आपका विश्वासी लोगों को कुछ ऐसा वचन दूँ ताकि वो आपका वचन को समझ सके और उस वचन को पालन कर सके और कुछ नया सीखे। तो बाइबल में जब मैंने देखा और अनेक जगह देखने का बाद परमेश्वर ने मुझे दिखाया कि तुम फलवंत बनो, बी फ्रूटफुल, तुम फलवंत बनो। परमेश्वर हमें कहा है तुम फलवान बनो, फलवंत बनो, बी फ्रूटफुल। तो आज हम लोग जितने भी प्रभु का विश्वासी लोग हैं, परमेश्वर हमसे चाहता है कि हम फल लाए। परमेश्वर के लिए हम फल लाए, फल उत्पन्न करें, फल हम लोग प्रोड्यूस करें, ताकि प्रभु का जो अनुग्रह और आशीष हमारे जीवन पर बने रहे। और जब प्रभु ने हमको बुलाएगा, हम लोग उस फल समेत प्रभु के पास हम लोग जा सके।
So today, as we are going to discuss about be fruitful. Be fruitful, because it is God's will that every Christian should bear fruit. Every Christian should bear fruit. They must produce fruit. The fruit, it's everlasting fruit. हमेशा रहने वाला फल. ये आज आया, आज पैदा हुआ, आज खत्म हो गया, ऐसा नहीं है. हमेशा रहने वाला फल. तो बाइबल के द्वारा हम लोग उस वचन को देखेंगे. अगर हम लोग उत्पत्ति, जेनेसिस चैप्टर 1 वर्स 22, परमेश्वर ने सब सृष्टि समूह को कहा था, टू द ऑल क्रिएटर्स, ही सेड टू ऑल द क्रिएटेड थिंग्स, बी फ्रूटफुल एंड सबड्यू, इंक्रीज ऑन द अर्थ. If you read Genesis chapter 1 verse 22, then it says, God blessed them and said, be fruitful and increase in number and fill the water in the seas and let the birds increase on the earth. परमेश्वर ने उस अपना सृष्टि को आशीष किया. जितना उसने सृष्टि किया उसको परमेश्वर ने आशीष किया और बोला तुम फलवंत बनो. दूसरा हम लोग देखेंगे जेनेसिस चैप्टर 1 वर्स 28 में बोला है, आदि पुस्तक उत्पत्ति का 1 और 28. आदम और हवा को परमेश्वर ने कहा बी फ्रूटफुल, बी फ्रूटफुल. অসমীয়া বাইবেলত লিখা আছে বহুবংশ হোৱা. ইংলিছ বাইবেলত কৈছে फ्रूटफुल, फलवंत होने কাৰণে. हिंदी में बोला है फलवंत होने के लिए. बहुवंश हो, बढ़ते जाओ, फ्रूटफुल हो. और जेनेसिस 8:17 में नोआह को भी बोला बी फ्रूटफुल, और जेनेसिस 35 वर्स 11 में जेकब को भी बोला बी फ्रूटफुल. इन द बाइबल वी फाइंड 34 टाइम्स द वर्ड फ्रूटफुल. बाइबলত आमी 34 बार फ्रूटफुल বা ফলবন্ত হোৱা এই শব্দটো পাওঁ. ফলৰ কথা কোৱা নাই, ফলবন্ত হোৱা আমি এই কথাটো বাইবেলত আমি পাওঁ. ফলবন্ত হ'বৰ কাৰণে আমাক বাইবেলে কৈ আছে ফলবন্ত হোৱা. তো আজি আমি অলপ বাইবেলৰ পৰা আলোচনা কৰিম যে ফলবন্ত হোৱাৰ মিনিং কি বা কেনেকৈ আমি ফলবন্ত হ'ব পাৰোঁ. আমি বহু ক্ষেত্ৰত খেতিয়কসকলে जो फार्मर लोग है, किसान लोग है, वो लोग पेड़ लगाते हैं और फल का आशा करते हैं. आम का बगीचा, जब आम का पेड़, आम का पौधा लगाते हैं वो लोग, तो आशा करके बैठे रहते हैं कि इस पौधे से, इस पेड़ से हमें आम मिले, बहुत सा आम मिले. तो इसीलिए वो लोग जब सीजन होता है, जब मैच्योर आम का पेड़ होता है, उसमें जाके वो लोग बैठते हैं सामने और आशा करता है कि इसमें मुझे फल मिले, इसमें से मुझे फल मिले. जो हम लोग घाना में हम लोग देखते हैं, या अफ्रीकन कंट्री में देखते हैं, आदमी लोग कोको का जो पेड़ लगाते हैं और वो लोग देखते हैं कि आशा करते हैं कि हमें इसमें से कोको मिले. लेकिन कोई फल जो देने वाले जो पेड़ होते हैं उसमें से फल नहीं मिलता है. तो वो लोग क्या करते हैं, उस फल जो पेड़ को, जो उसमें से फल पैदा नहीं होता, उत्पन्न नहीं होता, उसको काट देते हैं और उस जो जगह पर दूसरा जो प्लांटेशन करते हैं, पौधा लगा देते हैं ताकि वो फल लाए. जो किसान का मुंह में उस समय हंसी पैदा होता है जब वो लोग अपना परिश्रम का फल उनको दिखाई देता है. कैसे मेरा इस जो बगीचा में, आम का बगीचा में इतना आम हो रहा है, ये जो लीची का गार्डन में इतना लीची हो रहा है. जो भी वो लोग आशा करता है, जैसे हम लोग ऑरेंज का जो गार्डन में, जो लोग ऑरेंज का पेड़ में देखते हैं इतना ऑरेंज लगा है, तो उसका सारा दुख तकलीफ वो भूल जाते हैं और उस फ्रूट्स को देखते हुए वो हंसी, उसका क्या होता है, उसका आनंद आता है, खुशी मिलता है. उसी तरह परमेश्वर ने भी आशा करता है कि हमें फल लाना है. We have to produce fruits for our heavenly Father. That's why Jesus said in John chapter 15, and if you read verse 1, John chapter 15 and verse 1, the Bible says, I am the true vine and my Father is the gardener. I am the true vine and my Father is the gardener. ये बहुत ही सुंदर एक एग्जाम्पल
एक सुंदर परमेश्वर ने मिलाया, प्रभु ने मिलाया अपने आप को परमेश्वर पिता के साथ कि मैं तो एक दाखलता हूँ, लेकिन मेरा पिता जो है वो किसान है। कितना सुंदर! मतलब अगर यीशु मसीह दाखलता है और उसका पिता अगर किसान है, तो यीशु मसीह के द्वारा यीशु मसीह में जितने भी लोग जुड़ेंगे, यीशु मसीह में जितने भी लोग उसका पास आएंगे, करीब आएंगे, यीशु के द्वारा परमेश्वर को जानेंगे, उन लोग का ऊपर परमेश्वर का आशा रहता है कि ये लोग फल लाए। दे मस्ट बेयर फ्रूट्स। ये प्रभु का साथ रहते हुए, यीशु मसीह का साथ रहते हुए इन लोगों को फल लाना है, क्योंकि हम लोग अलग से जाके फल पैदा नहीं कर पाएंगे। बाइबल में हमें लिखा है, प्रभु ने, यीशु मसीह ने जॉन चैप्टर 15 के उसका जो आप दूसरा तीसरा वर्ष में आप पढ़िएगा, उसमें लिखा है, मैं दाखलता हूं, तुम डालियां हो। यू आर द ब्रांचेस। If I am the real vine, then you are the branches and you have to bear fruits. तुम्हें फल लाना है। যদি মই দাখলতা হয় তেতিয়াহ'লে তোমালোক ডাল হয়, আৰু ডালে তোমালোকে ফল আনিব লাগিব। অৰ্থাৎ আজি যিমান মানুহবিলাকে আজি যীশুখ্ৰীষ্টক চিনি পাইছে, তেওঁলোকে যীশুখ্ৰীষ্টৰ লগত যেতিয়া জড়িত হয়, যীশুখ্ৰীষ্টৰ লগত যেতিয়া আহি তেওঁৰ লগত সহভাগিতা ৰাখে, ঈশ্বৰে আশা কৰে যে যিসকলে আজি যীশুৰ যোগেদি ঈশ্বৰক জানিছে, পিতৃ ঈশ্বৰক চিনি পাইছে, তেওঁলোকে যেন ফল আনে। দে মাষ্ট bear fruits, they must produce fruits for Heavenly Father, because He is the gardener. তেওঁ খেতিয়ক হয়। So I tried to figure out the meaning of bearing fruits. मैं कोशिश किया कि फल लाने का या इसका मीनिंग क्या है। फल लाना, तो उसका मीनिंग डिक्शनरी में ढूंढा। डिक्शनरी में मैंने खंगाला कि फल लाने का मीनिंग क्या है, क्योंकि एक वर्ल्डली साइड कि हमें फल लाना है, एक आत्मिक रूप का है, तो आत्मिक रूप का बारे में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी हमको दुनियादारी की तरफ अगर फल लाने का मीनिंग क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बेयरिंग फ्रूट्स। मैंने इंग्लिश बाइबल में लिखा, उसमें स्पष्ट रूप से लिखा है, इफ वंस प्लान और इफोर्ट और डिसीजन और पॉलिसी और इन्वेस्टमेंट एटसेट्रा bears fruits, it means it produces a successful result or a good result or the intended result. कोई भी व्यक्ति का उसका सोचना, परिकल्पना, उसका जो भी सोच के रखा था, या उसका कोई उसमें काम में एफर्ट दिया, उसमें काम में मन दिया, उसमें जत्न किया, या कोई उसने सिद्धांत लिया, या उसका कोई पॉलिसी देखा इसे करने से अच्छा होगा, या उसने कोई जगह में टाइम इन्वेस्टमेंट किया या पैसा इन्वेस्टमेंट किया, उसका बाद जो उसमें से अच्छा संतुष्टदायक जो रिजल्ट निकला, उसी को इंग्लिश बाइबल में लिखा है फल पैदा होना। उसी को इंग्लिश बाइबल में इंग्लिश डिक्शनरी में लिखा है फल पैदा होना। ताकि लिखा আছে যে ফল উৎপন্ন কৰা। কোনোবা মানুহৰ ভাল এইটো টকা পইচা কোনোবা জেগাত তেওঁ ইনভেষ্ট কৰিছে, বা তেওঁৰ কিবা এটা সপোন বাস্তৱত পৰিণত হৈছে, কিবা এটা প্ৰচেষ্টা ফল কাম এইটো সিদ্ধ হৈছে, এই সকলোবিলাকে যেতিয়া এটা ভাল ৰিজাল্ট দেখুৱায়, ভাল এটা ফলাফল দেখুৱায়, সেইটো ইংৰাজী ডিক্সনাৰীত লিখা আছে ফল ধৰা। কিন্তু আমাক বাইবেলে তাৰ মিনিংটো অলপ বেলেগ ধৰণে শিকাইছে। যদিও ইংলিছ ডিক্সনাৰী আৰু বাইবেলৰ মিনিংটো বহুত ডিফাৰেঞ্চ নহয়, কিন্তু আমি বাইবেলৰ পৰা ফল ধৰাৰ মিনিংটো বি ফ্ৰুটফুল, মানে ফল বলৱন্ত হোৱা বা বহুবংশ হোৱা বা ফল উৎপন্ন কৰা, তাৰ মিনিংটো আমি বাইবেলৰ পৰা আমি চাবৰ কাৰণে গ'লে অকণমান বেলেগ হয়, পৃথক হয়। তো তাৰ কাৰণে আমি বাইবেলৰ পৰা দুটা জেগাত আমি দুটা শাস্ত্ৰপাত চাম। Let's turn to Luke chapter 8 verses 4 to 15, Matthew chapter 13 1 to 9 and Matthew chapter 13 18 to 23। अगर हम लोग इस जो पैसेज लोगों को पढ़ेंगे, ये जो इतना भी पैसेज इसमें लिखा गया है, इस पैसेज को अगर हम लोग पढ़ेंगे तो इसमें एक यीशु मसीह ने एलेगोरी अर्थात एक एग्जाम्पल दिया है। In this allegory Jesus tried to figure out that इसमें कहानी के लिए जा रहा है, किसी ने एक सॉवर, एक जो आपका बोने वाला अपना जो सीड को बो रहा है, फेंक रहा है,
खेत में सीड को फेंक रहा है, और उसमें से कोई जाके रास्ता का किनारा में गया, सीड चिड़िया लोग चुग के खा लिया, उसको ख़त्म किया। कोई जाके आपका ऐसे पत्थरी इलाके में, पत्थरी जगह में जाके गिरा, उसमें वो थोड़ा सा उसमें जो सीड से जो पौधा हुआ लेकिन वो मर गया। तीसरा लिखा है वो कांटे के बीच में जाके गिरा और वो बढ़ा लेकिन ज़्यादा बढ़ नहीं सका, कांटेदार जितना भी झाड़ी है उसको दबा के मार दिया। और चौथा अच्छा ज़मीन में जाके गिरा और उसमें से फल पैदा हुआ। तो आज इसको थोड़ा हम लोग डिटेल्स में देखेंगे। এই উদাহৰণটো আমি গোটেই হিচাৰ উদাহৰণটো অকণমান আমি ডিটেইলছকৈ আমি চাম, আমি কি ক'ব কাৰণে গৈ আছোঁ। নম্বৰ 1 তাত লিখা আছে, ইট ছেইজ দ্য চিড, গুটি। হোৱাট ইজ দ্য মিনিং অফ চিড? ইট ষ্টেণ্ডছ ফৰ দ্য ৱৰ্ড অফ গড। গুটিটো হৈছে ঈশ্বৰৰ বাক্য। মনত ৰাখিব, যিটো গুটি বা শস্য গুটি সিঁচিছে এইটো হৈছে ঈশ্বৰৰ বাক্য। ইট ষ্টেণ্ডছ ফৰ দ্য ৱৰ্ড অফ গড। Then the sower, হিচুতাজন কোন হয়? মানুহৰ পুত্ৰ অৰ্থাৎ যীশু খ্ৰীষ্ট, son of man অৰ্থাৎ যীশু খ্ৰীষ্ট মানুহৰ পুত্ৰ। ৰাস্তাৰ কাষত পৰা গুটি, তাৰ অৰ্থটোৱে কি বুজাইছে? যে ঈশ্বৰৰ বাক্য বহুতে শুনে কিন্তু বুজি নাপায়। परमेश्वर का वचन जो बोलते हैं, परमेश्वर का वचन जो बोलते हैं या कोई भी व्यक्ति को देते हैं, ऐसा व्यक्ति लोग के बारे में यहाँ कहा है, वो सुनता है परमेश्वर का वचन लेकिन उसको समझ में नहीं आता है, और इसीलिए शैतान आके उस व्यक्ति को ले जाता है, उसका मन को बहला फुसला के वो प्रभु का वचन सुनने में बाधा देता है। तीसरा लिखा है पत्थरी जो जमीन में जाके गिरा। पत्थरी जमीन का जो जमीन गिरने वाला उसको बोला जाता है जो आदमी प्रभु का वचन को सुनता है और अच्छा पाता है, लेकिन दुनिया का चिंता, मैं क्या करूं, मैं कैसे करूं, मैं इसे क्या खाऊं, परमेश्वर का यीशु को मैंने विश्वास करने से मेरा जीवन में ये होगा वो होगा, बहुत चिंता होने का नाते उसका क्या होता है, और जो पौधा तो थोड़ा बढ़ता है वो मर जाता है, वो बड़ा नहीं हो सकता। और उसमें कांटे का बीच में, इसमें है कांटे का बीच में, कांटे का बीच में पड़ने वाला जो है, जो इसमें दुनिया का जितना भी उसका चिंता लोग आके उसको दबा देता है। बहुत आदमी परमेश्वर का वचन सुनता है लेकिन दुनिया का हर एक किस्म का चिंता, वो बहुत चिंता करता है, वो परमेश्वर का जो वचन का ऊपर ध्यान नहीं दे के दुनियादारी का चिंता उसका ज़्यादा होने का वजह से उसका जो पेड़ पौधा है बढ़ता है लेकिन उसको दुनियादारी का चिंता उसको दबा देता है और मर जाता है। चौथा लास्ट में बोलता है अच्छा जमीन। अच्छा जमीन में गिरना, मैथ्यू चैप्टर 13 वर्स 23, द सीड that fell on the good ground stands for those who receive the word of God। जो अच्छा जमीन में जो गुट्टी और जो बीज जाके जो गिरा, उस बीज गिरने का जो मतलब है वो अच्छा जमीन में गिरा। तो अच्छा जमीन में गिरने का मतलब है वो जो परमेश्वर का वचन उस व्यक्ति ने समझा, उसने एक्सेप्ट किया, उसने ग्रहण किया। और मैथ्यू चैप्टर 13 वर्स 23 में लिखा है अच्छा जमीन में गिरने वाला वचन, वो पौधा, अच्छा जमीन में गिरने वाला जो सीड, जो बीज है, वो क्या हुआ, बड़ा हुआ, अच्छा एक पेड़ हुआ, और उसमें क्या हुआ, फल उत्पन्न हुआ 30 गुना, 60 गुना और क्या 100 गुना, 100 folds, 60 folds and 30 folds। तो इस पैराबल के द्वारा, इस एलेगोरी के द्वारा हमें क्या प्राप्त हुआ कि जमी, एक अच्छा जमी अपने आप कभी भी वो फल उत्पन्न नहीं कर सकता। एक अच्छा पेड़, एक अच्छा जमीन कभी भी वो अपने आप वो एक अच्छा पेड़ को वो खड़ा नहीं कर सकता, जन्म नहीं दे सकता। Until and unless वो अच्छा जमीन और अच्छा जो बिया, अच्छा जो बीज, अच्छा जो सीड उसका ऊपर नहीं गिरेगा, तब तक वो जमीन फ्रूट्स को, अच्छा जो पेड़ को पैदा नहीं कर सकेगा। क्योंकि अच्छा जमीन होने से भी उसका ऊपर क्या होना पड़ेगा, वो सीड
या वो जो बिया उसमें गिरना पड़ेगा। इसका मतलब है एक मनुष्य बहुत ही अच्छा है, एक आदमी बहुत ही अच्छा है, सम्मानदायक, सम्मानीय और बहुत ही नम्र व्यक्ति होने से हो सकता है, लेकिन अनटिल एंड अनलेस प्रभु का वचन उसका ऊपर नहीं आएगा और प्रभु का वचन प्राप्त होने का बाद वो व्यक्ति प्रभु का वचन के द्वारा फल पैदा करेगा, फल को उत्पन्न नहीं करेगा, तब तक वो एक अच्छा व्यक्ति कहला नहीं जा सकता। क्योंकि एक अच्छा व्यक्ति उसको कहा जाएगा फल उत्पन्न रहने वाला, और प्रभु का वचन में प्रभु का व्यक्ति उसको कहा जाएगा जो व्यक्ति प्रभु का वचन को सुनेगा, प्रभु का वचन को अमल करेगा, प्रभु का वचन का अनुसार चलेगा और वो एक सत अच्छा सम्मान रहने वाला व्यक्ति बनेगा। वो व्यक्ति अच्छा फल पैदा कर सकता है। इसीलिए आप जब तक प्रभु का वचन आपका अपना जीवन में आप आने नहीं देगा, যেতিয়ালৈকে ঈশ্বৰৰ বাক্য আপুনি নিজৰ ওপৰলৈ আহিবৰ কাৰণে নিদিব, যেতিয়ালৈকে আপুনি ঈশ্বৰৰ বাক্য গ্ৰহণ নকৰিব, আপুনি যিমানেই সাধু, যিমানেই ভাল বা আপুনি যিমানেই সৎ হওক, কিন্তু আপুনি ঈশ্বৰৰ বাক্যৰ যোগেদি যেতিয়ালৈকে আপোনাৰ জীৱনত সৎ ভাল কথা জ্ঞান আপোনাৰ উৎপন্ন নহব, তেতিয়ালৈকে আপোনাৰ জীৱনটোত ঈশ্বৰৰ বাক্য কি কয় আপুনি ভাল ফল দিয়া গছ নহয়। ভাল ফল দিয়া গছ হ'বৰ কাৰণে আপোনাক ফ্ৰুট আনিবৰ কাৰণে ঈশ্বৰৰ বাক্যটো দৰকাৰ আছে। আৰু ঈশ্বৰৰ বাক্যটো তেতিয়া আপোনাৰ জীৱনত আহিব যেতিয়া আপুনি তাক গ্ৰহণ কৰিব। আমি চাৰিটা ইয়াতে শস্যৰ কথা, চাৰিটা গুটিৰ কথা পাই আহিলোঁ। যেতিয়া শস্যটো গুটি পেলাই আছিলে, কিছুমান গৈ পিনে ৰাস্তাৰ কাষত পৰিলে, ৰাস্তাৰ কাষত পৰাবিলাকক চৰাই আহি খাই দিলে, মানুহে গছকিলে। কিছুমান গৈ পিনে পাথৰ শিলগুটি থকা জেগাত পৰিলে, শিলনিত, আৰু সেইবিলাক অলপ সৰুকৈ পুলি উঠিলে কিন্তু মৰি গ'ল। কিছুমান কাঁইটনিত গৈ পৰিলে আৰু কাঁইটনিয়ে তাক হেঁচা মাৰি মাৰিলে। কিছুমানহে গৈ ভাল মাটিত পৰিলে আৰু সেই বীজ বা সেই গুটিৰ পৰা গছ হ'ল, আৰু সেই গছে 100 গুণ, 60 গুণ আৰু 30 গুণ ফল উৎপন্ন কৰিলে। বাইবেলত আমাক কৈ আছে ফল উৎপন্ন কৰা, ফল উৎপন্ন কৰা। কিন্তু আমি বাইবেলখন যেতিয়া পঢ়োঁ তেতিয়া আমি ভাবোঁ কোনটো ফল আমি উৎপন্ন কৰিম, কেনেধৰণৰ ফল আমাৰ জীৱনত হ'ব। আমি সাধাৰণতে এটা কথাই আমি গুচি যাওঁ, আমি চাবৰ কাৰণে গুচি যাওঁ, যিটো গালাতিয়া 5 অধ্যায় 22 और 23 पदों लिखा है। जब हमें जो कोई प्रचारक बोलते हैं कि फल लाना है, तो हम लोग सीधा हम लोग का दिमाग में आ जाता है गलातियन चैप्टर 5 वर्सेस 22 एंड 23, जहां हम लोग को ये लिखा है कि आप देखिएगा गलातियन चैप्टर 5 वर्सेस 22 एंड 23, but the fruit of the spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness and self control। यहां हम लोग देखते हैं कि जब हमें कहता है कि फल लाओ, तुम्हें फल पैदा करना है, तुम्हारा फल प्रोड्यूस करना है, तो जो हम लोग कोई प्रीचर हम लोग बोलते हैं या बाइबल में हम दिखाई दे हाँ हमें फल लाना है, प्रभु हमसे फल चाहते हैं, तो हम लोग को इसमें दिखा देता है कि हाँ हमें तो ये फल लाना है। लेकिन इस वचन को शुरू होने का पहले लिखा है द फ्रूट ऑफ द स्पिरिट, आत्मा का फल। बट द फ्रूट ऑफ द स्पिरिट, आत्मा का फल। ये पवित्र आत्मा आने का बाद आपका जीवन में ये फल पैदा होगा, ये फल आपका जीवन में आएगा। ये होली स्पिरिट आपका जीवन में ये फल को लाने देगा। लेकिन इसका अलावा भी आपका जीवन में क्रिश्चियनिटी का जो फल है, यीशु मसीह को पीछे चलने के बाद जो फल आपका जीवन में पैदा होता है, आना चाहिए, वो फल आपका जीवन में होना जरूरी है। Not only the fruits of the Holy Spirit, apart from that you have to bear more fruits in your life. As you are a follower of Christ, being a follower of Christ, you have to produce another fruits in your life. Not only the fruits of the Holy Spirit only, but apart from that, more fruits, और भी fruits, और भी आपका फल आपका जीवन में आना चाहिए। जैसे आपको नम्र, फॉरगिवनेस, क्षमा देने वाला,
यह पवित्र आत्मा फल, पवित्र आत्मा का जो 9 फ्रूट्स ऑफ द होली स्पिरिट उसमें नहीं लिखा गया है। ये प्रभु को, जब प्रभु का वचन को आप सुनेंगे, प्रभु का वचन को जब आप अध्ययन करेंगे, उसी में लिखा गया है फॉरगिव, माफ दो क्योंकि मैंने तुम्हें माफ दिया है। हॉस्पिटैलिटी, किसी को सेवा करो, किसी का सेवा करने का फल कहा है, किसी का सेवा करने का फल आप जब यीशु को आप अपना सेवियर मानता है, वो मेरा लाइफ को रक्षा करने वाला एक अच्छा मेरा त्राण करता बन के आप मान लेते हो, तब वो आपको सिखाता है हॉस्पिटैलिटी, सेवा करना। उसके बाद आपको एज ऑनेस्टी, नम आपको एकदम बिल्कुल जिसको साधु बोलता है, ऑनेस्ट, अच्छा व्यक्ति। दुनिया में अच्छा व्यक्ति बहुत है, प्रभु को नहीं जानने वाला व्यक्ति। लेकिन प्रभु को जानने का बाद, प्रभु को जानने का बाद आपका जीवन में क्या परिवर्तन आया, यीशु को जानने के बाद आपका जीवन में क्या परिवर्तन आया, आपको ये बहुत जाना। मैं आपको एक सिंपल एग्जाम्पल से आपको मैं दिखाना चाहता हूँ। अब पेड़ को, जो एक पेड़ को ले लीजिए, पेड़ को उसको बड़ा होने के लिए, उसमें फल पैदा होने के लिए पहला उसको क्या चाहिए, सूरज का रोशनी। दूसरा वो पेड़ हो गया। तीसरा एक जमीन चाहिए जिसमें वो खड़ा हो सके। उसका बाद नीचे उसको क्या चाहिए, उसका जड़ क्या ढूंढता है, पानी, और उसमें जो जितना भी जरूरत, उसका जो भी है जरूरत चीज़ है जैसे मिनरल्स वगैरह उसको चाहिए। हम लोग का स्पिरिचुअल लाइफ में वैसे ही है, जैसे हम लोग को सूरज का रोशनी चाहिए, उसी तरह हम लोग का ऊपर परमेश्वर का आशीष, द गॉड, परमेश्वर का आशीष, वो सूरज का रोशनी जैसे पेड़ का ऊपर अपना रोशनी देते हैं, और सूरज का रोशनी के द्वारा पेड़ और जो फोटोसिंथेसिस के द्वारा वो अपना खाना पैदा करता है, उसी तरह जो ब्लेसिंग, परमेश्वर का ब्लेसिंग आपका ऊपर रहेगा। आप जमी है, बाइबल कहा है यू आर ए गुड ग्राउंड, आप अच्छा जमी है। यीशु मसीह कौन है, वो कहता है आई एम द ट्रू वाइन, अर्थात आप में कौन पैदा हो गया अभी, यीशु मसीह, और पवित्र आत्मा आपको क्या देगा, फल पैदा कर। बिल्कुल सिंपल मैथ्स है। पवित्र आत्मा उस आपका आप जो गुड ग्राउंड है, अच्छा जमी है, उसका ऊपर क्या पैदा करेगा, उसमें आपको अच्छा आत्मा। लेकिन यीशु मसीह एक पेड़ आपका ऊपर जो रहेगा, वो क्या पैदा करेगा, वो आपको उसका जो गुण है, क्षमा देने वाला, प्यार करने वाला, किसी को जो सेवा आपका हॉस्पिटैलिटी देने वाला, ऑनेस्ट होने वाला, सब कुछ वो यीशु मसीह आपको देगा। और पवित्र आत्मा ये 9 गुण, मैं অসমীয়া হেমকোষ যিখন অভিধান আছে তাতে মই চাইছিলোঁ, নৱগুণ। আপোনালোকে যিসকলে হেমকোষখন চাই তেওঁলোকে নৱগুণ তাতে আপোনালোকে চাব, 9টা গুণ, নৱগুণ। আমি গুণটো বিচাৰোঁ, আমি গুণ বিচাৰোঁ, আমি মানুহৰ গাত গুণ বিচাৰোঁ, কিন্তু বাইবেলে আমাক সেই 9টা গুণ আমাক দেখাই আছে। সেইটো গুণ ল'বৰ কাৰণে আমাক বাইবেলে পবিত্ৰ আত্মাই ৰেডি হৈ আছে যে মই তোমালোকৰ ওপৰলৈ সেই গুণকেইটা লৈ আনিম। যেতিয়া পবিত্ৰ আত্মা আহিব, সেই পবিত্ৰ আত্মাই আমাক এই গুণকেইটা দিয়ে। 9টা গুণ মই আপোনালোকক বাইবেলৰ পৰা দেখাবৰ কাৰণে বিচাৰিছোঁ। 9 ভাৰ্চু, নৱগুণ। নৱগুণৰ পৰা কি হয় আপোনালোকে হেমকোষ অসমীয়া অভিধানখন চালে গম পাব। 9টা গুণত লিখা আছে প্ৰেম, আনন্দ, শান্তি, চিৰসহিষ্ণুতা, মৰম, মংগলভাৱ, বিশ্বাস, মৃদুভাৱ, ইন্দ্ৰিয় দমন, এই সকলো আত্মাৰ ফল। जब पवित्र आत्मा आपका जीवन में आता है तो ये फल, 9 वर्चू, 9 गिफ्ट, फ्रूट्स ऑफ द होली स्पिरिट, वो आपका जीवन में लाएगा। आप एक ऐसा व्यक्ति बनेंगे कि आप आदमी को प्यार करने लगेंगे। आप आदमी को स्पिरिचुअल लव और फिजिकल लव के बारे में मैं नहीं बता रहा हूँ। आप स्पिरिचुअल लाइफ, किसी को देख के आपको माया आएगा। आपको कोई व्यक्ति थक के चला गया, आप उसको गुस्सा नहीं करेंगे, आप उसके लिए रोएंगे, प्रभु से माफी मांगेंगे, प्रभु आप उसको माफ कर दो, उसका जीवन अच्छा होने के लिए, उसका लाइफ अच्छा से चलने के लिए, क्योंकि आप उसमें प्यार पैदा होगा और प्यार पवित्र आत्मा आपका जीवन में देगा। आप हमेशा आनंद में रहेंगे, आप हमेशा आनंद में रहेंगे। जॉय ऑफ द होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा का आनंद। खाने से भी आप आनंद, नहीं खाने से भी आप आनंद।
मैं खाने से भी आनंद, नहीं खाने से भी आनंद आपका इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पवित्र आत्मा आपको वो आनंद से भर के रखेगा। और क्योंकि आप परमेश्वर का क्या है, आप परमेश्वर का जो आशीष, परमेश्वर पवित्र आत्मा का फल आप मिलने वाला एक व्यक्ति आप बनेंगे। शांति, आप पवित्र आत्मा आपको शांति देगा और शांति जीवन को वो परिवर्तन कर देगा। बाइबल कहती है जो प्रभु में है वो एक नया सृष्टि है। आपका मन हमेशा अशांति में रहते हैं। हमारे पास बहुत सा फोन कॉल्स आते हैं कि मेरा जीवन में अशांति है, मेरा परिवार में अशांति है। मैं उसे बोलता हूँ यह कि आप प्रार्थना करो, आपका गुनाहों को माफी मांगो। आप जब तक अपना गुनाह किसी से आप शेयर नहीं करेंगे तो आप वो गुनाह आपका जीवन में क्या होगा, गुनाह आपको अंदर ही अंदर खाते जाएगा और आप उस व्यक्ति के आगे आप माफी मांगे जो आपका गुनाह को क्षमा कर सकता है। दुनिया में ऐसा कोई भी नहीं है आपका गुनाह को माफी देने वाला। सिर्फ यीशु मसीह आपका गुनाह को माफी दे सकता है। जब आप यीशु के आगे अपना गुनाहों को माफी मांगते हैं, जब आप कहते हैं प्रभु मेरे द्वारा गलती हो गया, मैं गलती कर चुका हूं, तब आपका जितना भी आप पाप हो, जो भी आपका गहरा आप गुनाह किया है, जो भी आप गंभीर पाप किया है, यीशु मसीह आपका हर एक गुनाह से आपको छुटकारा देता है। प्रेज द लॉर्ड। वो आपका हर एक गुनाह से क्या करता है, छुटकारा देता है। जब आपको पाप आपको रियलाइज होता है कि मेरा गुनाह तो माफी हो गया, यीशु ने मुझे पाप को माफी कर दिया, उस समय आपका अंदर में एक शांति, एक पीस आता है। क्योंकि बाइबल कहती है, यीशु मसीह कहता है मैं अपना शांति तुम्हें देता हूँ, मैं अपना शांति में तुम्हें देता हूँ, दुनिया का शांति नहीं। तो वो शांति आपका जीवन में क्या होगा, हमेशा बढ़ते रहेगा और वो शांति हमेशा आप उस शांति में रहेगा और आप क्या करेगा, प्रभु को धन्यवाद देते रहेगा। परमेश्वर को चोखो बेदी मां चराउँछु यो मेरो जीवन, परमेश्वर को चोखो बेदी मां चराउँछु यो मेरो जीवन, मेरो सारा हृदयले मेरो सारा हृदयले यसो तपाईलाई महिमा होस्, यसो तपाईलाई महिमा होस्। परमेश्वर को चोखो बेदीमा चराउँछु यो मेरो जीवन, परमेश्वर को चोखो बेदीमा चराउँछु यो मेरो जीवन। मेरो परमेश्वर मेरो सहारा, तपाईको वचन मेरो ज्योति, मेरो परमेश्वर मेरो सहारा, तपाईको वचन मेरो ज्योति, अन्धकारमा पनि ज्योति दिने, अन्धकारमा पनि ज्योति दिने, प्रभु तपाईलाई जय जयकार होस्, प्रभु तपाईलाई जय जयकार होस्। परमेश्वर को चोखो बेदीमा चराउँछु यो मेरो जीवन, परमेश्वर को चोखो बेदीमा चराउँछु यो मेरो जीवन। इस समय पवित्र आत्मा मुझे दिखा रहा है कि बहुत ही दुख के साथ इस समय कोई बहन रो रहा है और प्रभु आपको इस समय पवित्र आत्मा से भर रहा है। आप अशांति में है, हाँ आपका परिवार में कोई बीमार है इसलिए आप बहुत ही दुख है,
लेकिन प्रभु आपको चंगा करना चाहता है। आप अपना जीवन को परमेश्वर को दीजिए, अपना जीवन को प्रभु का हाथ में सौंप दीजिए, क्योंकि प्रभु आपको ना किसी आपका बीमार को, आपका परिवार का जो भी बीमार सदस्य बीमार है, ना उसको चंगा करेंगे, आपका जीवन में अपना शांति से भर देंगे। प्रभु आपको अपना शांति देना चाहता है। आपका जीवन का प्रभु को दीजिए, अपना जीवन का प्रभु को दीजिए। इस समय प्रभु आपको बुला रहा है, आप प्रभु का हाथ में अपना लाइफ को आप सरेंडर कीजिए, अपना जीवन को दीजिए। हालेलुया। जब आप प्रभु को अपना लाइफ को देते हैं, पवित्र आत्मा आपका जीवन में शांति लाते हैं। इस जितना भी आपको ये जो आशीष आपका जीवन में देते हैं। लेकिन हम लोग जितना भी प्रचारक लोग हैं, जितना भी भाई लोग प्रचार करते हैं, वो लोग कहते हैं तुम पवित्र आत्मा से भरो, तुम आशीष ले लो, तुम परमेश्वर का साथ रहो। इससे मैं थोड़ा, जब मैं इस वचन को बना रहा था, उस समय परमेश्वर ने मुझे एक वचन को दिखाया। वो है रोमन चैप्टर 2 वर्सेस 21 to 23। इस वचन को प्रभु ने मुझे दिखाया। रोमन चैप्टर 2 वर्सेस 21 to 23। You then who teach others, do you not teach yourself? जो तुम दूसरों को सिखाते हो, क्या तुम खुद को टीच करते हो, सिखाते हो? परमेश्वर ने मुझे दिखाया, तुम दूसरों को तो सिखाते हो, ये करो, ऐसे करो, पवित्र आत्मा पाओ, फील हो, पवित्र आत्मा का ये वरदान है, पवित्र आत्मा का ऐसा है, या हमको ऐसे करना है। बहुत अच्छा प्रचारक लोग सिखाते हैं। लेकिन बाइबल हमें कहती है कि तुम दूसरों को तो सिखाते हो, क्या खुद तुम सीखते हो? इसमें आप रोमन चैप्टर 2 वर्स 21 to 23 पढ़ने से आपको पता चलेगा। You then who teach others, do you not teach yourself? You who preach against stealing, do you steal? तुम जो प्रचार करते हो चोरी मत करो, क्या तुम चोरी करते हो? आपको ये बात को हमेशा दिल में रखना है। आप तभी एक फ्रूट लाने वाला, फल लाने वाला पेड़ बनेंगे। आप तब एक अच्छा फल लाने वाला आप एक व्यक्ति बनेंगे जो प्रभु चाहते हैं। आप इसमें जॉन चैप्टर 15, इसको हम यहाँ रखेंगे, हम फिर से यहाँ आएंगे। जॉन चैप्टर 15 वर्स 16, इस वचन को आप देखिए। जॉन चैप्टर 15 वर्स 16, You did not choose me, but I chose you and appointed you to go and bear fruit. यीशु मसीह ने कहा है, तुमने मुझे नहीं चुना है, मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें अपॉइंट किया है, नियुक्त किया है, ताकि तुम जाके फल लाओ। परमेश्वर चाहते हैं कि यीशु मसीह चाहते हैं कि आपको अपॉइंट किया गया है, आप फल लाए, खुद भी लाए और दूसरों को भी आप फल उत्पन्न करने के लिए आप मदद करें। Help others to bear fruits so that they can bear much fruits. Because it is the desire of our Heavenly Father that each and every believers they should produce fruits. वो लोग को फल पैदा करना है। और इसीलिए हम लोग टीचर लोग जितना भी प्रीचिंग करते हैं, सिखाते हैं, हम लोगों का ये बहुत जरूरी होता है कि हम लोग भी पहले हम लोग अपने आप को सिखाएं। Let us train ourselves, let us preach ourselves, let us teach ourselves. If we are telling the people no, do not steal, then are we stealing? क्या हम भी चोरी कर रहे हैं? You who say that people should not commit adultery, do you commit adultery? जब हम लोग दूसरों को कहते हैं तुम व्यभिचार मत करो, तुम लोग व्यभिचार करते हो या नहीं? Adultery does not mean only physical relationship. You can be adulterer through your eyes, through your words. आप अपना बोली के द्वारा भी एक व्यभिचारी बन सकते हो। आप अपना आंखों के द्वारा भी आप एक व्यभिचारी बन सकते हो। आपका कपड़ा ड्रेस कोड के द्वारा भी आप एक व्यभिचारी व्यक्ति बन सकते हो। कोई व्यक्ति एक इमेज को भेजा और इमेज में मैंने देखा
इसमें इमेज में एक साइड में एक प्रोस्टिट्यूट को रखा गया है और इस दूसरा जगह में एक ऐसा चार्ज जाने वाला लड़की को रखा है। प्रोस्टिट्यूट जो सिर से लेकर पांव तक अच्छा कपड़ा पहन के और सज धज के है, लेकिन जो चर्च जाने वाला जो लड़की को दिखाया वो शर्ट्स पहन के गया है। तो उसमें लिखा है हु इज द स्पिरिचुअल एडल्टरर। इसमें लिखा है कौन है आत्मिक व्यभिचारी, कौन है इसमें व्यभिचारी, उसमें ऊपर में हेडिंग में था। आप अपना कपड़ा का ड्रेस कोड के द्वारा भी आप एक व्यभिचारी बन सकते हो। आप व्यभिचार नहीं करते लेकिन आपका व्यवहार के द्वारा, आंख के द्वारा, आपका बोली के द्वारा आप व्यभिचारी बन सकते हो। जब आप ऐसे करते हो तो आप दूसरों को कैसे कह सकते हो आप ऐसे मत करो। फर्स्ट आप अपने एक अच्छा डिसेंट फल लाने वाला व्यक्ति बनो, then you can teach others। हाँ आप ऐसे करो। पौल ने कहा imitate me। पौल ने बोला है, पौले को ऐसे मुख अनुसरण करा। पौলৰ ইমান বিশ্বাস আছে নিজৰ ওপৰত আৰু তেওঁৰ সম্পৰ্ক ঈশ্বৰৰ লগত ইমান ভাল যে তেওঁ কৈছে মুখ অনুসৰণ কৰা। follow imitate me। মই কেনেকৈ চলিছো মুখ অনুসৰণ কৰা। আজি আমি শিক্ষকবিলাকে বেকবাইটিং কৰিবৰ কাৰণে, আমি লোকৰ আলোচনা কৰিবৰ কাৰণে বহুতখিনি আমি সময়ত আমি কথা পাতোঁ, কিন্তু ইয়াৰ যোগেদি আমি আমাৰ ফল উৎপন্ন কৰাত আমি সহায় হয়নে? 23 You who break about the law, do you dishonor God by breaking the law? Hey, নিয়ম ভংগ নকৰিবা, নিয়ম নাভাঙিবা, মানি চলিবা। আমি ঈশ্বৰৰ নিয়মটো পালন কৰোঁনে? যদি আজি আমি ঈশ্বৰৰ এজন ফল আনুতা ব্যক্তি হিচাপে আমি ঈশ্বৰৰ আগত থিয় হ'ব লগা হয়, তেতিয়াহ'লে আমি প্ৰথমতে নিজকে আমি সংশোধন কৰিব লাগিব। প্ৰত্যেকজন ব্যক্তি, not only the evangelists, not only the pastors or missionaries, but each and every believers, they must be very careful about what they are doing। কি কৰি আছে তাৰ কাৰণে তেওঁলোকে বহুত সাৱধান হ'ব লাগিব। আমি অতি সোনকালে শেষ কৰিবৰ কাৰণে গৈ আছোঁ। Now, as far as the fruit bearing concerned, এতিয়া अभी है हम लोग फल लाने के लिए जो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो आप एक फल लाने वाला एक जुगत आप योगत हो रहा है, आप तैयार हो रहे हैं कि आप ये फल लाने, आप कैसा होना है? How Christians are likened, वो कैसा होना है, वो कैसा व्यक्ति होने से वो फल ला सकता है? Number 1, the branches of the true vine। आप उस जो सही जो सच्ची दाखलता का एक ब्रांच बनिए। आप उस सच्ची दाखलता का एक दाल बनिए, क्योंकि बाइबल में हमें लिखा है, आप देखिए जॉन चैप्टर 15 वर्सेस 1 and 2। जॉन चैप्टर 15 वर्सेस 1 and 2 में हमें लिखा है, I am the true vine and my Father is the gardener। He cuts off every branch in me that bears no fruit, while every branch that does bear fruit he prunes so that it will be even more fruitful। उसमें लिखा है कि तुम डालिया हो। आज आपको सच्चा दाखलता का एक डालिया बनना बहुत जरूरी है। সঁচা দাখলতাৰ এটা ডাল হ'বৰ কাৰণে আপোনাক বহুত দৰকাৰ আছে, কিয়নো প্ৰভু যীশুৱে কৈছে তোমালোক ডাল হয়, আৰু সেই ডাল হোৱাৰ কাৰণে ইয়াতে কৈছে তোমালোক ডাল হয়, সেইকাৰণে মোৰ লগত লাগি থাকিলেহে ফল উৎপন্ন কৰিব পাৰিবা। So the number one thing for how you can bear fruit, you have to become a part of the true vine। You must be a branch of the true vine। आप उस सच्ची दाखलता का, हे সঁচা দাখলতাৰ আপুনি এটা ডাল হ'বলৈ আপুনি দৰকাৰ আছে। তেতিয়াহে আপুনি কি কৰিব পাৰিব? ফল উৎপন্ন কৰিব পাৰিব। আমি যদি যীশুৰ লগত লাগি নাথাকোঁ বা যীশুৰ লগত লাগি থাকিলেও যদি আমি তেওঁৰ নিয়মবিলাক পালন নকৰোঁ, তেতিয়াহ'লে আমি ফল উৎপন্ন কৰিব নোৱাৰিম। ডাল হ'ম আমি, কিন্তু যীশুৰ লগত যদি ডালটো লাগি নাথাকে তেতিয়াহ'লে আমাক কি বুলি কোৱা যাব? এপষ্টেচি বা বেকস্লাইডেড খ্ৰীষ্টিয়ান।
খ্ৰীষ্টৰ পৰা আঁতৰি যোৱা, খ্ৰীষ্টৰ জীৱনৰ পৰা, খ্ৰীষ্টৰ যিটো সঁচা দায়িত্বতাৰ পৰা আঁতৰি থকা আমাক ডাল বুলি কোৱা হ'ব। আৰু এনেকুৱা ডালবিলাকৰ কাৰণে বহুত ডেঞ্জাৰ, কিয়নো এনেকুৱা ডাল যি ডালবিলাকত গুটি নধৰে সেই ডালবিলাকক কাটি জুইত পেলাই দিয়া হ'ব। সেইকাৰণে আপুনি আৰু আমি বহুত সাৱধান হ'ব লাগে। মই খ্ৰীষ্টৰ লগত লাগি আছোঁ নে মই খ্ৰীষ্টৰ পৰা আঁতৰি এটা ডাল হৈ চলি আছোঁ। যদি আপুনি খ্ৰীষ্টৰ লগত লাগি আছে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ জীৱনত ভাল গুটি ধৰিব। যদি আপুনি খ্ৰীষ্টৰ লগত লাগি থকা নাই তেতিয়াহ'লে আপুনি এটা ডাল হ'ব, সেই ডালটো কাটি পেলোৱা ডাল, আৰু সেই ডালত কি হ'ব বাইবেলত কৈছে সেই ডালটো জুইত পেলাই দিয়া হ'ব। গতিকে আজি আপুনি মনত ৰাখিব যে আমাৰ জীৱনত ঈশ্বৰে ফল আশা কৰিছে। Every people, every man in this world, they are sinners by birth and also by choice. जिमान पृथ्वीत मानव से, दुनिया में जितना भी लोग हैं वो पापी है जन्म से, और वो अपना सिद्धांत से, अपना विचार के अनुसार जन्म से पापी। ये हमें आदम और हवा का जो गलती के द्वारा हम लोग पापी है, वो तो हम लोग का जीवन में वो चला रहेगा। जितना भी हम लोग जितना भी मनुष्य जन्म होते रहेगा वो पाप, वो जनरेशनल कर्स आते आते, वो सिन आते आते जाएगा। लेकिन वो सच करता है कि वो सच कैसे करता है कि कोई प्रचारक प्रचार कर रहा है, यीशु का वचन बोल रहा है, वो वचन को नहीं सुनेगा, वो वचन को मानने के लिए अस्वीकार करेगा। वो बोलेगा ये अच्छा नहीं है, मत करो, बंद करो। वो प्रभु का वचन को ध्यान नहीं देगा और वो अपना जीवन में क्या लेगा, पाप होते अपना पापमय जीवन में वो चलने के लिए वो विचार करता है। एक हो गया जन्म से पापी है, दूसरा वो प्रभु का वचन सुनने से वो पाप से मुक्ति पाने का रास्ता उसको मिलना था, लेकिन वो पाप का रास्ता को नहीं सुनेगा, नहीं मानेगा। वो पापमय जीवन में रहने के लिए वो क्या करता है, डिसीजन लेता है, डिसाइड करता है, वो पापमय जीवन में रहता है। आज आपको उस पापमय जीवन में से प्रभु आपको उठाना चाहता है। पापमय जीवन में से आप कैसे उठेंगे? डे आफ्टर डे, दिन दिन आपको क्या करना है? एक ही दिन में आप बहुत सा फल आप पैदा नहीं कर पाएंगे। जैसे आज आप प्रभु का वचन को पढ़ा, चाहे आपने मैथ्यू चैप्टर 5:28 को पढ़ा। मैथ्यू चैप्टर 5 जब आप पढ़ने को आपने पढ़ा, उसमें लिखा है तुम किसी को बुरा नज़र से मत देखो। जब आप बुरा नज़र का मत देखो, ये वचन को पढ़ा तो आपने डिसाइड किया ठीक है, आज से मैंने इस आँख से किसी को भी बुरा नज़र से नहीं देखूंगा। वो आपके लिए एक फल लाने का है, आप उसमें से फल ला रहे हो। एक दूसरा दिन आप पढ़ रहे हो तो मैथ्यू चैप्टर 5:44 आप उसमें देखा, आप अपना एनिमी, अपना शत्रु को आप प्यार करो। उसमें आप देखा, उस दिन आपने सोच लिया नहीं, मैं आज से अपना जितना भी शत्रु होने से भी उसको मैं प्यार करूंगा। उसके द्वारा आपने अपना जीवन में एक फल पैदा किया। मैथ्यू 6:14 को आप दूसरा दिन पढ़ रहा था, आप उसने बोला माफ़ी दो, उसमें लिखा है तो माफ़ कर दो। आप बोला ठीक है, मेरा जितना भी आदमी लोग मुझे ठोकर खिलाया है, मुझे दुख तकलीफ दिया है, मुझे जो भी बुरा भला का है, मैं सबको माफ़ी दे रहा हूँ। उसके द्वारा आप क्या कर रहे हो, अपना जीवन में फल उत्पन्न कर रहे हो। इसीलिए ये एक दिन में होने वाला चीज़ नहीं है। ये आज जिस दिन आप प्रभु को जाना, उस दिन से शुरू होके जितना दिन आप दुनिया में रहेंगे, आप एक दिन एक फल को पैदा करके जाना है। आप उत्पन्न हो उसको आप प्रोड्यूस करके जाना है। और जिस दिन आप पूरा फलवान होगा, जिस दिन आप पूरा फलवान होके, जब आपका बुलाहट आएगा, प्रभु आपको बुलाएगा, उस दिन आप प्रभु का साथ जा पाएंगे और परमेश्वर का आगे आप खड़ा होके आप परमेश्वर को आप काउंट, अपना फल को आप दिखा सकते हैं। हाँ प्रभु, दुनिया में रहते हुए आप जो फल लाने के लिए मुझे कहा था, ये फल मैंने लाया है। हाँ, यही फल प्रभु चाहते हैं, यही फल हमारा पिता चाहते हैं, वही फल आपका जीवन में पैदा होना है। इसीलिए प्रभु कहता है बी फ्रूटफुल, बी फ्रूटफुल, तुम फलवंत बनो, तुम फलवंत बनो, तुम्हें फलवान हुआ। ईश्वरे आज आमक ए बाक्यर जोगेदी आशीर्वाद करो। सेल स्टैंड टुगेदर, हम लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे और हम लोग प्रार्थना में आगे बढ़ेंगे। हमें प्रार्थना आगे बढ़ें। ईश्वरे आमक ए बाक्यर जोगेदी आशीर्वाद करो।
Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. পবিত্র 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 স্বৰ্গত থকা মহান দয়ালু প্ৰভু পিতা মই তোমাক ধন্যবাদ দিছোঁ সকলো মহিমা মান মৰ্যাদা স্তুতি মহিমা প্ৰশংসা ধন্যবাদ কৰিছোঁ আব্ৰাহামৰ ঈশ্বৰ ইছহাকৰ ঈশ্বৰ ইজৰাইলৰ ঈশ্বৰ জাকোবৰ ঈশ্বৰ প্ৰভু তোমাক এইখিনি সময়ত মই ধন্যবাদ দিছোঁ সকলো গৌৰৱ তোমাৰ নামতেই হওক মহিমা তোমাৰ নামতেই হওক প্ৰশংসা তোমাৰ নামতেই হওক সুন্দৰ সময় তুমি আমাক দিলা আজি তুমি ভাল দিন আমাক দিলা তোমাৰ ওচৰত চাপিবৰ কাৰণে প্ৰাৰ্থনা কৰিবৰ কাৰণে আৰু প্ৰভু তোমাৰ বাক্য আলোচনা কৰিবৰ কাৰণে সময় দিলা তাৰ বাবে ধন্যবাদ দিওঁ সঁচাকৈ প্ৰভু সুন্দৰ বাক্য তুমি আমাক দিলা তুমি বাক্যৰ যোগেদি আমাক ক'লা বি ফ্ৰুটফুল ফলৱন্ত হোৱা প্ৰভু আমি কেনেধৰণৰ ফল এই পৃথিৱীত আমি উৎপন্ন কৰাটো তুমি বিচাৰা এই বাক্যৰ যোগেদি প্ৰভু আমাক জানিবলৈ দিলা তাৰ বাবে ধন্যবাদ দিওঁ যিমান ভাই ভনীসকলে প্ৰভু আজি এই বাক্য শুনিছে যিমান ভাই ভনীসকলে প্ৰভু আজি অনলাইনৰ যোগেদি ফেচবুক লাইভ ইউটিউব লাইভৰ যোগেদি আমাৰ লগত জড়িত হ'ল প্ৰভু তুমি তেওঁলোকক এই বাক্যৰ যোগেদি আশীৰ্বাদ কৰিবা তেওঁলোকে যেন প্ৰভু তোমাৰ পবিত্ৰ আত্মাৰ আশীৰ্বাদেৰে পৰিপূৰ্ণ হয় বাক্যৰ যোগেদি তেওঁলোকে যেন আশীৰ্বাদ প্ৰাপ্ত হয় তেওঁলোকৰ জীৱনত প্ৰভু তুমি কাম কৰা তেওঁলোকৰ জীৱনত প্ৰভু তোমাৰ অনুগ্ৰহ আশীৰ্বাদ আহিবৰ কাৰণে দিয়া পবিত্ৰ আত্মাৰ যোগেদি প্ৰভু চলোৱা তেওঁলোকৰ দুখ কষ্ট সমস্যা সকলো তুমি লোৱা আৰু তুমি কৈছা যিটো ফল তেওঁলোকে প্ৰভু এই পৃথিৱীত থাকোঁতে আনিব লাগে সেই ফল যেন প্ৰভু তেওঁলোকে আনিব পাৰে কেৱল পবিত্ৰ আত্মাৰ 9টা ফলেই নহয় তাৰ বাহিৰেও প্ৰভু ক্ষমা দিয়া আৰু লগতে প্ৰভু এইটো প্ৰভু পিতা এইটো যিমান প্ৰভু বাক্যবিলাক তুমি আমাক দিলা প্ৰভু সেই সকলোবিলাকৰ তেওঁলোকে যেন তেওঁলোকৰ জীৱনত প্ৰভু উৎপন্ন কৰিব পাৰে এক ভাল মাটি হ'ব কাৰণে তেওঁলোকক তুমি আশীৰ্বাদ কৰা যি মাটিত প্ৰভু তোমাৰ বাক্য পৰিলে সেই বাক্যই প্ৰভু ফল ধৰিব এনেকুৱা মাটি হ'বলৈ দিবা 100 গুণ 60 গুণ 30 গুণ ফল ধৰিব পৰা এনেকুৱা প্ৰভু আমাক মাটি হ'বৰ কাৰণে তুমি আশীৰ্বাদ কৰি দিয়া সহায় কৰি দিয়া পিতা প্ৰভু এই বাক্য যদি প্ৰভু তোমাৰ সন্তানবিলাকে শুনিছে এই বাক্য তুমি তেওঁলোকৰ জীৱনত কাম কৰিব কাৰণে দিয়া তেওঁলোকৰ দুখ কষ্ট সমস্যা সকলো তুমি লোৱা যি ভনী কান্দি আছে প্ৰভু নিজৰ পৰিয়ালৰ কাৰণে সেই ভনীৰ ওপৰত তুমি আশীৰ্বাদ কৰি তেওঁক তুমি শান্তি দিয়া তেওঁৰ পৰিয়ালত যাৰ যি ৰোগ বেমাৰ আছে তুমি তেওঁলোকক সুস্থতা প্ৰদান কৰা এইদৰে প্ৰভু যিমানবিলাকে আজি বেমাৰত আছে দুখত আছে কষ্টত আছে তেওঁলোকৰ জীৱনত দিবা প্ৰভু তেওঁলোকৰ জীৱনত তোমাৰ শান্তি অনুগ্ৰহ কাম কৰিবৰ কাৰণে দিয়া পবিত্ৰ আত্মাৰ বৰদানসমূহ তেওঁলোকৰ জীৱনত কাম কৰিবৰ কাৰণে দিয়া লগতে প্ৰভু পিতা তেওঁলোকৰ চাকৰি তেওঁলোকৰ ব্যৱসায় তেওঁলোকৰ প্ৰফেশ্যন সকলোতে তুমি আশীৰ্বাদ কৰিবা ফেমিলি লাইফৰ ওপৰতো তোমাৰ আশীৰ্বাদ থাকিবলৈ দিবা প্ৰভু তেওঁলোকে নতুন জীৱন নতুন যি শান্তি নতুন যি আশীৰ্বাদ পায় তোমাৰ সেৱা কৰি যাব পাৰিব তুমি তেনে অনুগ্ৰহ দান কৰিবা প্ৰভু উপস্থিত প্ৰত্যেকজনকে আৰু আমাৰ লগত জড়িত হোৱা প্ৰত্যেকজন বিশ্বাসীকে তোমাৰ হাতত সমৰ্পণ কৰি প্ৰাৰ্থনা দয়ালু প্ৰভু যীশুৰ নামত খুজিছোঁ আমেন প্ৰেইজ দ্য লৰ্ড প্ৰেইজ দ্য লৰ্ড প্ৰেইজ দ্য লৰ্ড